domestic structure of your cricket, which lasts only for a few months that you are playing? Like last year, since 2-3 years, we've got the days game in the domestic structure, and even BCCI has made an effort to get it under 16 level, because that is the basic level from where the girls can get into playing the higher level. And I myself have played under 16, under 19s a lot, so I think they're coming with the under 23 as well. So there is changes in the domestic structure to develop players, quality players, and of course there is a huge gap between domestic and international standard. But again, it will close down with the facilities that the state players have access to now from their respective state associations. It's just a matter of playing more games and giving them more opportunities. मिताली, हमारी जनरेशन ने ये हमेशा देखा होगे तो इतना बख्शिश दूंगा तुम्हें, दूसरे आओगे तो इतना बख्शिश दूंगा तुम्हें। आपकी जनरेशन ने भी शायद वही देखा होगा, नए लड़कियों की जनरेशन ने वही देखा होगा, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ अलग कदम उठाया, फाइनल में गई 50 लाख का। उससे आप संतुष्ट हो क्या? अगर संतुष्ट नहीं हो तो आप बीसीसीआई से और क्या चाहोगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो 99 से खेल रही हूँ, जब कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं था। ये क्वेश्चन तो आप उनको पूछनी चाहिए जो अभी अभी आएंगे। मैं चाहूंगा वो भी जवाब। Two questions for the finals, which was heartbreaking. But immediately next year we have the World T20. So how desperate are you to win that and cover up, and cover up this World Cup defeat, final defeat, unfortunately? And Tushar bhai, when you took on the coach role, how easy was it for you to come and adjust, and like there was no media attention and the kind of pressure the other coaches have, the men's coaches. So how easy was it for you to? Was it like a Chak De Kabir Khan moment? I don't think we ever would want to play to cover up things, but yes, after the bad performance in 2013, being the host, we could not qualify for the Super 6. I think the girls and even I have worked very hard in preparing for this World Cup. And the same hard work we'll put into the T20 World Cup, because it's a different format and it requires different preparation. And it definitely will start very soon. And it will be a challenging thing, because India still has a long way to go in terms of T20 format. But again, we have some of the brilliant players of that format. And we definitely will look forward to putting a better performance than the last T20 World Cup. I think it's not easy to take up the challenge. Especially when you are playing, you are depending on your performance, you are getting picked on your performance. When you into the coaching, your performance is counted on the team's performance. So like there's always a challenge, and I like to take up the challenge. Even in the past I did it, so I was pretty confident I would be able to handle the team very well, and will do well from this work. Hello, congratulations on your fantastic journey. How was the experience to bowl at Lords especially? देखो, लॉर्ड्स में खेलना तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स के लिए ड्रीम होता है उस ग्राउंड पे जाके खेलना। 2001 पे मैं जब फर्स्ट टाइम गए थे एज ए टूरिस्ट बन के गए थे लॉर्ड्स में, वहाँ से ग्राउंड से घास भी उठा के लेके आई थी, क्योंकि पता नहीं था उसके बाद कभी चांस मिले खेलने का या उस ड्रेसिंग रूम पे आने का। बट उससे पहले हम लोग जितने बार मैचेस खेले लॉर्ड्स में, हमेशा इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। 2006 में खेले हम लोग, 2012 में खेले, उसके बाद एक मैच वॉश आउट हो गया था। बट
वर्ल्ड कप फाइनल खेलना लॉर्ड्स में इट वाज लाइक एनी क्रिकेटर्स के पास वो ड्रीम कम ट्रू होता है। और मेरा यही था रोल जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाया था उस हिसाब से मैं अपना रोल को प्ले करने की कोशिश कर रही थी। एंड प्रेशर तो रहता है, वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा एंड यू हैव टू हैंडल दैट प्रेशर। एंड मज़ा आ रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल इन राइट एरिया क्योंकि विकेट में बाउंस इतना नहीं मिल रहा था, विकेट वॉज बिट स्लो, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू precisely I tried to bowl one line of the one side of the wicket. And sometimes ये काम करता है, sometimes आपका दिन अगर अच्छा हो तो आप अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर रन पड़ता है क्योंकि शॉर्टर वर्जन गेम में आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आप किस तरीके से चलने वाले हैं। Harmanpreet, congrats for that wonderful knock in the semi-finals against Australia. Do you always bat like that without inhibitions, just go out and there? What is the secret to your, what exactly do you, how do you exactly love to bat? What is the style, and can you tell how disappointed were you in the finals when you got out like that after going after that shot? उस तरह से बैटिंग करना अच्छा लगता है बिकॉज बचपन से मैंने वैसे ही सीखा है और बॉयज़ के साथ क्रिकेट खेली है और जब वो सिक्सेस मारते थे और वैसे मारना अच्छा लगता था। समटाइम्स ऐसे होता है कि बॉलर्स आपके अगेंस्ट अच्छी स्ट्रेटजीज करके आते हैं, आपको इजी रन नहीं मिलते और उस टाइम पे वर्क हार्ड करना पड़ता है। और मेरे कोच ने हमेशा यही सिखाया कि अगर आप कितने भी अगली दिखो लेकिन आपको वहाँ पे बैटिंग करते रहना चाहिए। और लॉर्ड्स वाले मैच में भी उस दिन भी और उस टाइम रन चाहिए थे टीम के लिए, रन्स के लिए जा रही थी, उससे पहले बाउंड्रीज मिल रहे थे और वो जो शॉट था वो मेरा तो यही था कि उसको पूरा कवर करूं लेकिन वो फील्डर के हाथ में चला गया। डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज अगर थोड़े 2-4 ओवर और खेलती और रन बनते तो शायद जो 9 रन से हम लोग मैच हार गए और वो नहीं होता। हरमन, सडनली एक सुपरस्टार इमेज बन गया है आपका बैक इन इंडिया। आपको लगा था वो नॉक के बाद व्हाट स्पेशल यू हैव डन? डिड यू टुक टाइम टू कंज्यूम इट? कितना बड़ा इनिंग खेल लिया आपने, प्रॉब्ली ये सबके लिए याद रहेगा आफ्टर कपिल देव। उससे पहले भी मैंने डोमेस्टिक में ऐसे काफ़ी सारे नॉक्स खेले हैं लेकिन और इंटरनेशनल में भी चांस मिला लेकिन इतना लंबा स्कोर कभी नहीं करा था। लेकिन आईसीसी की तरफ वो मैच टेलीकास्ट हुआ और सबने देखा और ऑफ कोर्स वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस टाइम पे हम वो मैच बहुत हंगर था उस मैच को जीतने का। और अच्छा लगा मुझे कि जब टीम को ज़रूरत थी उस टाइम पे मैंने वो नॉक खेला और हम मैच जीते। जुलन, आप फर्स्ट बेसिकली फास्ट बॉलर रहे हो, स्टार फास्ट बॉलर इंडिया के लिए। 20 साल में आप खुद को देखते हो और आज आप नए फास्ट बॉलर्स को देखते हो जैसे मानसी जोशी, आपको क्या फ़र्क में नज़र आता है? हाउ मच हैव फास्ट बॉलिंग डेवलप्ड इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट? देखिए, अपने देश में अभी भी काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं जो इन अ डे दे आर द मैच विनर, पीपल लाइक मानसी, शिखा, शुकन्या, देन few other bowlers है जो in a day they are the match winner. Unfortunately मानसी को इस टूर्नामेंट में उतना चांसेस नहीं मिला, but definitely I have lot of faith on her because उसके पास वो स्पार्क है जो अच्छा चीज़ है उसके पास, जैसे अच्छा स्विंग कराती है, लेट स्विंग कराती है। एज ए बॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉल कितना अच्छा स्विंग हो और कितना लेट स्विंग हो, बट थोड़ा सा और अपना क्रिकेट को अपना फिटनेस लेवल को ऊपर लेके आए क्योंकि शी हैव दैट लॉट ऑफ स्पार्क ऑन हर एंड शी कैन कैरी दिस लेगेसी फ्रॉम हियर टू आगे और लेके जा सकते क्योंकि शी इज़ वेरी गुड बॉलर एंड शिखा ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। जितना भी हमें और इंडिया के जितने भी अच्छे बॉलर्स है सारे मेहनत कर रहे हैं आजकल क्योंकि आज के दिन में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड सब प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ वर्क कर रहे हैं एंड होपफुली आगे जाके हमें और अच्छे फास्ट बॉलर मिलने वाले हैं। हाँ हरमन, सेमीफाइनल मैच के दौरान लोगों ने आपका खेल भी देखा और एक पल के लिए आपका गुस्सा भी देखा, वो कारण क्या था? यानी आपकी अपनी सेंचुरी छूट जाएगी गुस्सा इस बात का था या सेमीफाइनल छूट जाएगा हाथ से गुस्सा इस बात का था?
एक बात आपको बता दूं, जब भी मैं बैटिंग करती हूँ मैंने कभी मेरे रन्स देखे ही नहीं कि मेरे रन्स कितने हो गए हैं। हमेशा जो टोटल होता है वही देखती हूँ। और उस टाइम पे लाइक मितुदी आउट हो चुके थे, स्मृति आउट हो चुकी थी, और मुझे उस टाइम पे अपना विकेट और दीप्ति का विकेट लूज़ नहीं करना था। और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे अंदर, और लाइक हम लोग उस रन को, इजी रन था उसको, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। बिकॉज उस टाइम पे मुझे आउट हो के या दीप्ति को आउट हो के बाहर लाइक बैठ के मैच देखना नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि अगर आपने पूरा मैच देखा हो लास्ट मोमेंट तक वो फाइट कर रहे थे। और 250 270 रन उनको 42 ओवर में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज उनके पास लास्ट विकेट तक बैटर्स थे। सो गुस्सा बस वही था कि मुझे आउट नहीं होना था और दीप्ति का भी विकेट नहीं लूज़ करना था। लेकिन बाद में जब हमने बात करी और बाद में फिर इनिंग को संभाला। हरमन, 170 मारना वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शायद ही किसी ने किया हो आज तक। ये फिटनेस के हिसाब से कितना मुश्किल था आपके लिए? फाइनल के लिए रिकवर कर पाना कितना मुश्किल था? कैसे किया आपने? फिटनेस के हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज फिटनेस करना मुझे अच्छा लगता है। शुरू से बहुत फिटनेस करी है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। फुटबॉल की वजह से मेरा फिटनेस लेवल है वो बहुत लाइक अभी और वर्क करना है। लेकिन फाइनल के लिए ठीक था, बिकॉज थोड़ी बहुत इंजरीज थी, और थैंक्स टू आर फिजियो जिसने इतने अच्छे से मेरी इंजरीज को मैनेज करा और मुझे खिला पाया। लेकिन बीच में ऐसे लग रहा था जब मुझे फिंगर पे चोट लगी थी कि अभी मेरा वर्ल्ड कप गया और मुझे वापस आना पड़ेगा इंडिया। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेसी दी ने मैनेज करा और बाद में मैंने मैचेस खेले, और मैं फुल क्रेडिट उसको देती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से मैंने वर्ल्ड कप खेला। बहुत सारी इंजरीज थी जो मैंने वर्ल्ड कप के थ्रू कैरी करी, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस आ पाई बाहर। This will be the final question. After this, we'll have one short break before we commence with the third round of press conferences, which will be the last. Question is for Herman. It's most likely आप टीम को 2021 में लीड करोगे. So as the vice captain of the team, आपके लिए सबसे ज़्यादा important takeaways क्या रहा है? क्योंकि आप इस टीम के बहुत सारे members को शायद, I repeat शायद, लीड करने वाली है. So what have been the biggest takeaways for you as the vice captain of the Indian cricket team? अभी इतना बहुत दूर का बात करी आपने, वहाँ तक वहाँ पे मैं कैप्टन बनूंगी नहीं बनूंगी वो तो भी फ्यूचर की बात है। लेकिन इस टाइम पे जिस हिसाब से टीम खेल रही है वो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये जो मोमेंट हम आज स्पेंड कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। और आई थिंक जिस हिसाब से अभी हमारी टीम खेल रही है, कोई भी कैप्टन हो कोई भी लीड करे, मेरी विशेष तो यही रही कि हम लोग जैसे इस हिसाब से वर्ल्ड कप में खेले और उस वर्ल्ड कप में भी खेले, और इस बार जस्ट कुछ रन की वजह से हमारा कप जो मिस हो गया नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो कप लेकर आए। We will take one final question, and for the final round of press conference, we will have Dipti Sharma, Preeti Mandhana, and Poonam Raut. This question is for Herman. What all changes did you bring in your batting post playing in Big Bash League? शुरू से लाइक मुझे अग्रेसिव बैटिंग करना अच्छा लगता था, और आई थिंक वो सारी चीज़ें मुझे बिग बैश में हेल्प करी। और बिग बैश में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे, और जिनको देख के और जैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सारी चीज़ें मुझे बाद में साउथ अफ्रीका और फिर अभी इंग्लैंड में हेल्प करी। और आई विश जैसे मुझे और स्मृति को चांस मिला वैसे हमारी टीम में अगर 2-3 प्लेयर्स और को चांस मिले और वो खेलें और उनको सीखने के लिए मिले, बाद में हमारी इंडियन टीम के लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। Thank you. Thank you. So for the final round of the press conference, we have Dipti Sharma, Preeti Mandhana, and Poonam Raut. Let's start with Taus. Taus, use the mic. Taus, use the mic. Can you tell us about the reception you received last night? You were there, like one of the in this batch of 6. The kind of reception you received last night, how overwhelming it was. कैसा reception जो last night आया मिला आप लोग को एयरपोर्ट से जब बाहर आए? एयरपोर्ट से जब बाहर आए आप लोग, रिसेप्शन जो मिला आप लोग को पब्लिक से, इतना क्राउड था बाहर, तो जो फर्स्ट बैच में 230 को आए थे, तो कितना वो फीलिंग कैसा था और कितना ओवरवेलमिंग था वो फीलिंग की, मतलब जब बाहर आए ऐसा पब्लिक मिला और आपको मतलब हार पहना है ये वो बहुत।
यस, बहुत अच्छा लगा. एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बाहर था. बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने खेला है तो डिज़र्व करती है हमारी लड़कियां. तो थैंक यू सो मच. इतना बड़े स्टेज पे इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था. प्लेइंग अलोंग विद सीनियर प्लेयर्स टीम में मिताली एंड झूलन है, और इतने बड़े प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया? बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया, उसके पीछे कैसे आपने प्रेशर हैंडल किया? दैट इज़ द क्वेश्चन. मुझे पता था कि मेरा क्या रोल है टीम में. सो मैं वैसे ही कर रही थी. बॉलिंग में भी जस्ट मेरे को ये करना था कि मुझे डॉट्स बॉल पे ज़्यादा वर्क करना है. सो मैंने वैसे ही किया बॉलिंग में. एंड बैटिंग में भी यही था मेरे को कि ज़्यादातर पार्टनरशिप पे वर्क करना है एंड स्ट्राइक रोटेट करना है. सो वैसे ही किया मैंने. Journey was good, of course. As a kid, you always dream to play at Lords, and unfortunately, we missed playing at Lords in 2014 because the match was washed out. But I remember Juludi telling me and Shika that don't worry, the 2017 World Cup final is at the same ground, and if we do well, we'll be playing. So I think that really happened, and it was like a dream come true to play in front of the whole packed stadium in Lords. पूनम, आपने टीम को बहुत स्टार्ट्स दिए, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी, फाइनल में एक्सेट्रा. तो एज एन ओपनर जो प्रेशर हैंडल करना है इंग्लैंड में, कैसा था आपके लिए? प्रेशर तो ज़रूर था, लेकिन हम लोग ने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी. जैसे मैं खुद की प्रिपरेशन लास्ट 2 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही थी कि ओपन में हमें कैसे खेलना है, पावर प्ले में हमें कैसे अप्रोच करना है. यस, इंग्लैंड में थोड़ी कंडीशन अलग रहती है. विकेट वहाँ के मतलब फास्ट रहते हैं, और वहाँ पर बॉल स्विंग भी उतना ही होता है, और बाद में बारिश, और उसके बीच में हमें खेलना पड़ता है. तो इंडिया से बहुत ही अलग कंडीशन थी. लेकिन जिस तरह से हमने प्रिपरेशन करी इंग्लैंड जाने से पहले, मतलब काफ़ी अच्छा था हमारा प्रिपरेशन, उस हिसाब से था. तो वहाँ पे जाके हमने, थैंक्स टू BCCI, उन्होंने हमें बहुत जल्दी 10-12 दिन हमें जल्दी जाने का मौका दिया. तो वो बहुत यूज़फुल था हमारे लिए. वो कंडीशन में हम लोग सूट हो गए, और इसलिए शायद हमें मतलब बहुत इजी गया हमारे लिए ओपन में खेलना. अगर पहले बैटिंग की गई होती तो फाइनल हाथ में आ जाता? नहीं, एक्चुअली इस स्टेज पे जब आप खेलते हो, फाइनल खेलते हो या फिर सेमीफाइनल, फाइनल खेलते हो, टॉस अपने हाथ में नहीं होता. आपको सारी कंडीशन के लिए फेस करना रहता है, पहले बैटिंग हो या फील्डिंग हो. तो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि हम फर्स्ट बैटिंग करते तो शायद हम जीत जाते, लेकिन ऐसा कुछ माइंड में नहीं था. जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी और फील्डर्स ने जैसे बैकअप करा था, तो एक बहुत बड़ी बात है इंग्लैंड को उनकी होम ग्राउंड पे इतनी कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट करना. तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिला था कि यस, हम ये टोटल चेस कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करते, या फिर ऐसा कुछ नहीं था. Thank you, everyone. With this, we conclude the press conferences for the day. Summer
पुन्हा इथे हायजॅक केली पूर्ण टीम